हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग सुपर फैंटास्टिक एंड सुपर रॉकिंग यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। एंड गाइस, दिस इज दर्शन जैन, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. और दोस्तों, आज लेकर आया हूं सेकेंड यूनिट ऑफ अवर पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स बिगिन। So our daily schedule for partnership accounts will be 11:30 a.m. to 12:30 p.m. on YouTube on this particular channel, Unacademy CA Foundation. Let's talk about the paid batch, guys. मिशन सक्सेस बैच हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा बैच है। महज 50 days में, in just 50 days we are covering almost 70% of the syllabus. Do join this batch to cover the syllabus in the minimum possible time, wherein all the entire 9 educators of Bahubali team guide you for all the 4 subjects. Okay, this batch will be followed by RTP and MTP batch, and also guys 900 MCQs batch of economics and maths. Yes guys, more than 600 students cleared CA Foundation in June 22 studying from Bahubali team, and guys, more than 140 students secured distinction. Around 13 students secured 90 plus marks in accounts, and I am hoping and I am wishing that I want to see each and every one of your name in the list of 90 plus in the December 22 attempt. एग्जाम आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 14th ऑफ दिसंबर। आई होप सभी ने एग्जाम फॉर्म भर लिए। ठीक है, चैट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, फॉर्म फिलअप किया है क्या आपने? हैव यू फिल्ड अप एग्जाम फॉर्म? लेट मी नो। एंड यस, अनअकैडमी इज गिविंग यू treat on this festive season, wherein you are getting 20% off on your subscription from 26th of September to 30th September. You just have to apply my code DKJ10 and get 20% off on your subscription. Yes, do not forget to use my code. It's DKJ10. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. Join this Telegram channel, guys. More than 27,000 students have joined this Telegram channel, have subscribed to this Telegram channel, and have been receiving link, notes and updates. You also can enjoy all the details and information relating to CA Foundation from your loving Bahubali team by joining this particular Telegram channel. Okay, do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is CA_Darshan_Jain. Same is the ID on Instagram as well as Telegram. Okay, chalo, let's begin. Very very good morning, Priya, Sabah, Santu, Ayushi, Yogita. Yes, Vagisha, Priya, Mahek. Very very good morning, guys. Neil, Umi, Anjali, Chaitanya, Aditya, Anshika. Very very good morning, guys. प्लीज फिल अप योर एग्जाम फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। जिसने भी अभी तक एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज डू इट एट द अर्लीस्ट एवरीवन। ओके, चलो लेट्स बिगिन गाइस। पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दिस इज आवर सेकंड बीट। ओके, द ग्रेट शेक्सपियर वंस सेड, नाम में क्या रखा है गाइस? नाम में ही सब कुछ रखा है। what we are going to do in this particular topic? In this particular topic we are going to ascertain the value of goodwill. क्यों मेरे लिए जानना जरूरी है कि मेरे फर्म के गुडविल का वैल्यू क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नया पार्टनर एडमिट करोगे, उस नए पार्टनर से गुडविल मंगानी पड़ेगी। कितनी? उसका शेयर इन द शेयर ऑफ गुडविल, फर्म के गुडविल में उसका शेयर, तो फर्म की गुडविल निकालना पड़ेगा। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का कंपनसेशन करना है, उसके लिए गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब भी रिटायरमेंट होगा दोस्तों, रिटायरिंग पार्टनर को फर्म के गुडविल में उसका जो शेयर होगा वो देना होगा, उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन आपके लिए जरूरी है। जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को उसका शेयर फर्म के गुडविल में जो भी होगा वो उसे देना पड़ेगा, उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन निकालना बहुत जरूरी है। सो गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको
देयर विल बी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चाहे एडमिशन होगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, चाहे रिटायरमेंट होगा, चाहे डेथ होगा, one thing will be common, that gaining partner needs to compensate sacrificing partner with the amount of goodwill. लेकिन गुडविल का सेटलमेंट करने के लिए हमें ये तो जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दिस इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। अराउंड 3 लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। चलो लेट्स बिगिन। हाउ इज द जोश गाइस? हाउ इज द जोश एवरीवन? हाउ इज द जोश एवरीवन? जो लोग नए हैं जो लोग नए हैं बता दूं उन्हें कि इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको पुराने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक। सर आज अल्टीमेट बैच का फर्स्ट लेक्चर है, मेरा फर्स्ट लेक्चर अल्टीमेट बैच का, ठीक। नया टॉपिक आज से स्टार्ट है, पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यस, ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दिया। दिया आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूं स्पेशली, वरना आप फिर से नाराज हो जाओगी। दिया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, वेटेज की बात करें तो यार दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने काफी बेवफाई की है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ बड़ी बेवफाई की है आईसीआई ने। केवल एक बार पूछा है, वो भी लास्ट अटेम्प्ट में, वो भी केवल 5 मार्क के लिए। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मार्क के लिए आ सकता है। सर कुछ नहीं समझ रहा है। अरे अजय समझाने तो दे बेटा, बेटा समझाने तो दे। मैं समझाया ही नहीं अभी तक और तू कह रहा है समझाने। बेटा कब कौन सा कमेंट करते, इतना तो सिखाया होता उन्होंने जिन्होंने तुझे भेजा है। 5-10 मिनट के बाद ये कमेंट करते बेटा, कुछ पढ़ाने के बाद की समझानी है, पहले नहीं करते। प्लीज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख जरा। आ जाओ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्लाइड ब्लर दिख रहा है, नहीं दिखेगा, आएगा अभी अच्छे से आएगा। आ जाओ दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है हमें? गुडविल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, need for valuation of goodwill, and what are the various methods for valuation of goodwill? Average profit method, super profit method, annuity method, capitalization method। कुल मिलाकर 4 मेथड है, 4 मेथड हम लोग करने जाएंगे, ठीक है। सर आज पहली बार मैं आपका लाइव लेक्चर कर रही हूँ। उज्ज्वला स्वागत है आपका बेटा। आशा करता हूं कि हमारा लेक्चर देखने के बाद उज्ज्वला का भविष्य काफी उज्जवल हो जाएगा। आशा करते हैं बेटा उज्ज्वला कि हम आपका भविष्य उज्जवल कराने में आपकी मदद कर सके। आ जाओ दोस्तों, मैं भी, आकाश रंजन, आ जाओ बेटा, सब आ जाओ, सब आ जाओ दोस्तों, सब आ जाओ। मीनिंग क्या है गुडविल का? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर over and above the normal profits earned by similar other firms belonging to the same industry. This is very important. दो एक टाइप के बिजनेस है। नॉर्मली 1 लाख रुपया उन्होंने कमाना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में कमा रहा है दोस्तों 1.5 लाख रुपया। दैट मीन्स एक बिजनेस है, जो बिजनेस कोई भी अगर करेगा तो वो 1 लाख रुपया एक साल में कमाएगा, अज्यूम, ठीक है। लेकिन आपका बिजनेस है, सेम बिजनेस है, लेकिन आप 1 लाख नहीं कमा रहे हो, आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो। यू आर अर्निंग 50,000 ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर ओवर एंड अबव आप नॉर्मल प्रॉफिट के कमा लेते हो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपके फर्म के पास गुडविल है। यू हैव गुडविल विथ योर फर्म, ठीक है। समझ में आया क्या सभी को? नेक्स्ट, सच एक्सेस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ये 50,000 क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट?
एक्स्ट्रॉनियस प्रॉफिट. व्हाट इज एक्स्ट्रॉनियस प्रॉफिट? प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? ऐसा प्रॉफिट जो हर बिजनेस अर्न कर लेगा. ठीक. द गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट. पूरी दुनिया वो बिजनेस में 1 लाख रुपए कमा रही है साल के, आप भी 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कोई गुडविल नहीं है आपका. अरे भाई, गुडविल तो तब होगा जब पूरी दुनिया 1 लाख रुपया कमा रही है और आप 1,20,000 कमा रहे हो, आप 1,50,000 कमा रहे हो, आप 1,80,000 कमा रहे हो, आप 2 लाख कमा रहे हो. यू आर अर्निंग ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट. ओनली इन दिस सिनेरियो गाइस, ओनली इन दिस सिनेरियो इट इज सेड दैट योर फर्म इज हैविंग अ गुडविल. ठीक. नेक्स्ट. Any firm that earns only the normal profits or is incurring losses has no goodwill. गुडविल अगर कहना चाहते हो कि भाई मेरे बिजनेस के पास गुडविल है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना होगा दोस्तों. ठीक. नेक्स्ट. If the time value of money is considered, goodwill can be defined as the present value of anticipated future profits. ठीक है. अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने मैथ्स में पढ़ा है, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करेंगे तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज आज का वैल्यू. लेकिन किसका आज का वैल्यू? ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स. फ्यूचर में जो मिलने वाले प्रॉफिट है उसका आज का वैल्यू अगर कुछ है तो वो है आपका गुडविल. आई होप एवरीवन गॉट दिस. ठीक. पढ़ लेना दोस्तों, तीनों पॉइंट है, पढ़ लो जल्दी. अनामिका, मैं याद हूं या भूल गए सर? आपको कैसे भूल सकते हैं अनामिका? आपको कैसे भूलेंगे बेटा अनामिका? पॉइंट नंबर 2, अगर भाई नॉर्मल प्रॉफिट अगर है तो कोई गुडविल नहीं है. नॉर्मल प्रॉफिट अगर है तो कोई गुडविल नहीं है. ठीक है क्या? यह है पॉइंट नंबर 2. सर आप सबको ऐसे क्यों बोलते हो? अब जो बात है वो है यार, मैं मेरे स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलता हूं. प्लीज. नेचर ऑफ गुडविल, क्या नेचर है? गुडविल इज रिगार्डेड एज इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉट अ फिक्टिशियस असेट. इंटेंजिबल मतलब दिखेगा नहीं, केवल महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ना दिखेगा ही. ठीक. फिक्टिशियस मतलब बोगस असेट. तो क्या गुडविल ये बोगस असेट है? ना, ये बहुत वैल्यूएबल असेट है. वो इनटेंजिबल असेट है, दिखेगा नहीं, टच नहीं कर सकते हो, केवल फील करना होगा. आंखें बंद करके दोस्तों फील करना होगा केवल. ठीक. नेक्स्ट. गुडविल इज अ वैल्यूएबल असेट इफ द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट एंड इज अ वैल्यूलेस असेट इफ द फर्म इज इंकरिंग लॉस. अरे भाई, गुडविल का इंपॉर्टेंस तभी है जब फर्म प्रॉफिट कमा रही है. अगर लॉस हो रहा है तो भाई कोई गुडविल का वैल्यू नहीं होगा. ठीक. However, in the period of temporary recession, the goodwill of the firm which is incurring least losses as compared to other similar firms may be valuable asset. अब दोस्तों कोविड का पीरियड था. ठीक है. अब कोविड पीरियड में कैसे डिटरमाइन करेंगे गुडविल? तो भाई जो सबसे कम लॉस इंकर कर रहा है उसके पास गुडविल है, क्योंकि सभी लॉस कर रहे हैं मान लो, लेकिन जिसने सबसे कम लॉस किया है उसका गुडविल माना जाएगा. ठीक. कौन कौन सी चीजें से गुडविल अफेक्ट होती है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है. आप किस टाइप का बिजनेस करते हो? ठीक. आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, आप लीकर का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, गुडविल पे इफेक्ट होता है दोस्तों. ठीक है. टोबैको का बिजनेस कर रहे हो, इफेक्ट होता है. ठीक. तो नेचर ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग गुडविल. उससे आपकी गुडविल अफेक्ट होती है. फेवरेबल लोकेशन, किस लोकेशन पर आप बिजनेस को चला रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस पर भी आपकी गुडविल डिपेंड करता है. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका स्टाफ कितना अच्छा है, आपका स्टाफ कितना एफिशिएंट है, उस पर भी आपके फर्म की गुडविल डिपेंड करती है. मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा योर वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक. नेक्स्ट. स्पेशल एडवांटेज, आपके पास अगर कोई स्पेशल एडवांटेज है जो बाकी किसी और के पास नहीं है, उससे भी आपका गुडविल बढ़ेगा दोस्तों.
नेक्स्ट टेक्निकल नो हाउ, मतलब कोई आपके पास आर्ट है या कोई कह सकते हैं फॉर्मूला है आपके पास, मान लो कोविड से दूर करने का तरीका है आपके पास, वो टैबलेट है आपके पास, ठीक है, या वो फॉर्मूला है टैबलेट बनाने का, ठीक है, तो वो भी आपके गुडविल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक, आपके प्रोडक्ट्स में कितनी क्वालिटी है ये भी आपके गुडविल को बताता है। जितना आपके प्रोडक्ट्स क्वालिटेटिव होंगे उतने आपके फर्म की गुडविल ज्यादा होगी। आफ्टर सेल सर्विस, बहुत से बिजनेसेस सिर्फ सेल तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब तक सेल नहीं होता तब तक फोन पे फोन करते हैं, लेकिन एक बार सेल हो गया तो फोन नहीं करते हैं। तो दोस्तों सेल के पहले भी और सेल के बाद भी ये दोनों चीजें अगर होती हैं तो गुडविल है, समझ लेना, ठीक। नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपके प्रोडक्ट से अगर कस्टमर्स हैप्पी है, खुश है, सेटिस्फाइड है, तो समझ जाना आपकी गुडविल बढ़ती रहेगी, ठीक। नेक्स्ट नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों गुडविल को वैल्यू करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, अगर आपको बिजनेस बेचना है, ठीक है, तो उसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चेक। When there is a change in profit sharing ratio among the existing partners, अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है तो कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो इन दिस सिनेरियो गेनिंग पार्टनर इज टू सेक्रीफाइस, गेनिंग पार्टनर इज टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गुडविल का वैल्यू निकालना जरूरी होगा। सेकेंड, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नया पार्टनर एडमिट हो गया, उससे उससे उसका गुडविल का शेयर मंगाना होगा, इसके लिए गुडविल का कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देना पड़ेगा दोस्तों, उसका शेयर अगर देते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट व्हेन अ पार्टनर डाइज, पार्टनर ऊपर चला गया, तीसरे दिन पार्टनर की बीवी आ जाएंगी, बोलेंगे लाओ दो मेरे पति के गुडविल का अमाउंट, कहां से देंगे, पहले गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद व्हेन द फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, ठीक है, आपको आपके बिजनेस बेचना है लेकिन आपने आपके बिजनेस में तन मन धन सब लगाया है, तो आप क्या करोगे, केवल उसी का पैसा नहीं लोगे जो आपने असेट दिया है, आपने जो मेहनत की है, आपने जो नाम बनाया है, उसका भी पैसा आप लोगे उससे, तो उसको कहते हैं दोस्तों गुडविल, ठीक। मान लो आपने किसी का बिजनेस लिया जिसमें 1 लाख रुपए के असेट थे, ठीक है, और 20,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, ठीक है, कितने रुपए आपने पे करने चाहिए थे, 80,000 पे करना चाहिए था, लेकिन आपने पे किया 1 लाख रुपया, ठीक। तो ये 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है ये क्यों पे किया है आपने, फॉर गुडविल, ठीक। नेक्स्ट व्हेन द फर्म इज अमालगमेटेड विद अनदर फर्म, आपका बिजनेस किसी और के साथ अमालगमेट हो रहा है तो उसमें भी गुडविल का शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से मेथड, कौन कौन से मेथड है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट फ्यू इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रॉनियस प्रॉफिट निकालेंगे ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा है एन्युटी मेथड, यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेंगे, और चौथा है दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड। सम्यक सेठिया सर, हमारे बैच के बाद आप और हैंडसम हो गए सर, अरे क्या चल रहा है बेटा सम्यक, हैंडसम हो गए मतलब बोलना क्या चाहता है, मैं पहले से हैंडसम हूँ, बेइज्जती कर मत यहाँ आके यूट्यूब पे, समझ में आया क्या, बोल चैट बॉक्स में सर पहले भी हैंडसम थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो कुल मिला के यार दोस्तों 4 मेथड हमको पढ़ना है, एक एक करके अपन करेंगे मेथड, फिर उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक। सर ओपी चल रही है पढ़ाई, बस एफएम का वेट कर रहे हैं, आएंगे बेटा दिसंबर में एफएम पढ़ाएंगे आपको। सर मई 23 के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे सिलेबस पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अलीना बेटा कहाँ हो, अलीना क्या समय हो रहा है बेटा, क्लास शुरू होके कितना समय हो चुका है।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड, उसमें दो है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर एन्युटी मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में वापस दो मेथड, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिएगा। गाइस मजाक अपार्ट, डीजे सर सबसे ओपी है अनअकैडमी पे। ओ हो, कितना क्यूट बोलते हो आप, क्या लीना बेटा। यस दिया। पढ़ लो दोस्तों, जल्दी पढ़ लिए क्या? कोई बात नहीं बेटा लीना, कोई बात नहीं, आ जाओ, थेरी पार्टी था, कोई दिक्कत नहीं। डीजे सर तारीफ कर दी, अब जीपे कर देना, ठीक है? कर देता बेटा, वेट कर फोन पे। फोन पे नजरें बांध के रख, मैं अभी जीपे कर रहा तुझे। तो सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है दोस्तों, ये हद से ज्यादा सिंपल है। देखेंगे इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है? ध्यान देंगे सभी लोग। Under this method, goodwill is valued on the basis of certain number of years purchase of the average annual profit of the past years। क्या करेंगे यहाँ पे, पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज कर देंगे, ठीक है? While calculating past profits, any abnormal gain is excluded by deducting from the past profits and any abnormal loss is excluded by adding to the past profit, ठीक है? ना एबनॉर्मल गेन को कंसीडर करेंगे, ना एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर किया जाएगा दोस्तों, दोनों को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक? नाउ यहां पे गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, आज इसका लॉजिक पढ़ेंगे, ठीक है? मान लो ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, सी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है, ठीक है? अब दोस्तों ए और बी ने अपना तन मन धन दिया है आज तक, सी आ रहा है रेडीमेड बैठ रहा है, रेडीमेड प्रॉफिट खा रहा है। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर 3 ईयर्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि नया जो पार्टनर आ रहा है सी, ये ए और बी के दम पर, ए और बी के मेहनत पर अगले 3 साल तक पैसे कमाने वाला है। और 3 साल के बाद में ये सिचुएशन आ जाएगी कि उसने भी अपना इतना तन मन धन दिया है बिजनेस को कि हम ये नहीं कह पाएंगे कि सी अब ए और बी के बेसिस पर रन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर 3 इयर्स परचेज हम लोग कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे नया पार्टनर है, उसे कहते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आई होप द लॉजिक इज क्लियर, ठीक? नेक्स्ट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। उसके बाद फॉर असर्टनिंग एवरेज एनुअल प्रॉफिट either simple average or weighted average may be employed depending upon the circumstances, ठीक है? लैग है, लैग कहाँ है यार? देर इज नो लैग, कोई लैग नहीं है, बहुत जबरदस्त स्पीड है, इतना स्पीड है वहां तुम्हारे पास आके बैठ सकता हूं। If there exists clear increasing or decreasing trend of profit, it is better to give more weight to the profits of the recent year than those of earlier years, ठीक? दोस्तों अगर ट्रेंड नजर आ रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इन दिस सिनेरियो गाइस, इन दिस सिनेरियो क्या करेंगे आप? आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज करना होगा। बट इफ देयर इज नो क्लियर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, इट इज बेटर टू गो बाय सिंपल एवरेज, ठीक? नेक्स्ट, द मेथड ऑफ गुडविल इज नॉट यूजुअली फॉलोड इन प्रैक्टिस।
as the goodwill is really attached with the profit over and above the normal level of profit. ये मेथड का ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट है मतलब गुडविल है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट होने से गुडविल नहीं होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगा, ये जरूरी है. सो द क्रिटिसिज्म फॉर दिस मेथड और द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज कि इसमें आपका प्रॉफिट है मतलब आपकी गुडविल है, जबकि कॉन्सेप्ट क्या है गुडविल का, देयर शुड बी एक्स्ट्रानियस प्रॉफिट, there should be a profit over and above the normal profit. ठीक, under this method there will be a value attached to the goodwill even though an enterprise is not earning normal or expected profits. ठीक, चलो नेक्स्ट. था सर, ठीक है ना यार, अभी क्लियर है ना, अभी क्लियर है ना सर. आरटीपी एमटीपी बैच कब से शुरू होगी? लगभग 20 अक्टूबर. इलस्ट्रेशन 1 पर आएंगे. The past profit of 5 years of a partnership firm are 50,000, 40,000, 52,000, 48,000 and 56,000 respectively. Calculate the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profit of the last 5 years. ठीक है, check guys. Value of goodwill is equal to average annual profit for last 5 years multiplied by number of years purchase. ठीक, कैसे निकालेंगे पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट? चेक, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स. कितना आ गया दोस्तों? वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाय 5 49,200 इंटू 4 ईयर्स. कितना आ गया दोस्तों वैल्यू ऑफ गुडविल? पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना है? 1,96,800. समझ में आया क्या सभी को? सिंपल है, सिंपल है क्या? Is it simple everyone? Is it simple? नेक्स्ट देख लो एक बार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे. Calculate the value as on 1st Jan 2017 on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 5 years. The profit and loss account were 2011, 12, 13, 14, 15, 16. 1 2 3 4 5 6 साल का डिटेल दिया है, जबकि मुझे एवरेज एनुअल प्रॉफिट केवल लास्ट 5 ईयर्स के चाहिए. तो लास्ट 5 ईयर्स कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. ठीक है, आ जाएंगे दोस्तों. वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स multiplied by number of years purchase. एवरेज एनुअल प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स का 90,000, पीछे से स्टार्ट करूंगा, प्लस 70,000 प्लस 55,000 प्लस 92,000 और पहले साल में लॉस है, लॉस है मतलब माइनस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितना है? 3 ईयर्स.
करेंगे दोस्तों कैलकुलेट। 90,000 प्लस 70,000 प्लस 55,000 प्लस 92,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 5 years 53,500 53,400 not 500 53,400 multiplied by 3 1,60,200। समझ में आया क्या सभी को? इज दिस सिंपल? सिंपल है क्या? थ्री इयर्स कहां से आया? दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस। इधर ध्यान दो। चलो नेक्स्ट। इफ इन इलस्ट्रेशन टू करो इसको। इफ इन इलस्ट्रेशन टू profit on sale of fixed assets during 2012 amounted to rupees 2,000, during 2014 amounted to rupees 5,000, and loss on sale of fixed asset during 16 was amounted to rupees 5,000, calculate value of goodwill। सेम क्वेश्चन है पिछला, लेकिन ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो दोस्तों ट्रू प्रॉफिट्स, ascertainment of ट्रू प्रॉफिट्स। ट्रू प्रॉफिट्स क्या होंगे? कौन कौन से साल है? 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ये हो गए 5 साल। ठीक। दिया कितना है प्रॉफिट? लॉस दिया है 40,000। 2013 में क्या दिया है? 92,000 का प्रॉफिट। 2014 में क्या दिया है? 55,000 का प्रॉफिट। 2015 में क्या होगा? 70,000 का प्रॉफिट। और 2016 में क्या होगा? 90,000 का प्रॉफिट। तृप्ति लास्ट 5 years दिया है बेटा, 5 साल खत्म हो जाते हैं ना दोस्तों। प्रॉफिट हुआ था सेल ऑफ फिक्स एसेट पे 2,000 रुपया। 2,000 रुपए के प्रॉफिट के बाद मेरा लॉस 40,000 आया। और ये क्या है? ये एबनॉर्मल आइटम है। ये क्या हर साल होगा क्या? हर साल आप फिक्स एसेट बेचेंगे क्या और हर साल उस पर प्रॉफिट होगा क्या? ना। तो एनी एबनॉर्मल गेन एंड एनी एबनॉर्मल लॉस इज टू बी इग्नोर्ड। तो दोस्तों ये 40,000 का जो लॉस आया है वो आया है 2,000 का प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल लॉस कितना होगा मेरा? 42,000। 42,000 विल बी माई एक्चुअल लॉस। ड्यूरिंग 2014 5,000 का प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद 55,000 का प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों 5,000 माइनस कर देंगे, असली प्रॉफिट होगा केवल 50,000। और दोस्तों 2016 में 5,000 का लॉस हुआ है। लॉस होने के बाद 90,000 आया है, तो लॉस को ऐड कर देंगे दोस्तों, प्लस 5,000। ओरिजिनल प्रॉफिट विल बी 95,000। तो 2013 का आ जाएगा 92,000 और 2015 का आ जाएगा 70,000। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया क्या सभी को? पहले केस में 2,000 का प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद 40 का लॉस आया, मतलब एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितना होगा? 42,000 का। यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट मिलाने के बाद 55,000 आया, मतलब नॉर्मल कितना हो जाएगा? 50,000। और यहाँ पे 2016 में 5,000 ऐड करने के बाद, लॉस लेस करने के बाद 90,000 आया, 5,000 ऐड कर देंगे। ठीक, अब निकालो नॉर्मल तरीके से। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज
annual profit of last 5 years multiplied by number of years purchase. एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है लास्ट 5 years का, चेक करेंगे. -42,000 प्लस +92,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 5 years मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 years. नहीं, डायरेक्ट आंसर में भी लिख सकते हैं, क्रेजी शेफ लिख सकते हैं. -42,000 प्लस 92,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,59,000 वैल्यू ऑफ गुडविल. आई होप एवरीवन गॉट दिस. आई होप एवरीवन गॉट दिस. किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई शक दोस्तों? श्योर वृशाली, थैंक्स अ लॉट. यस, ये वाला आप करेंगे. अब जल्दी करो, ये वाला आप करो जल्दी. द फॉलोइंग वेर द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 years. 2011 में 5 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन 1.5 लाख का है. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना पकड़ेंगे? केवल 3.5 लाख. 4 लाख 2012 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2 lakhs. लॉस चार्ज करने के बाद 2 लाख आया, तो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख. और 2013 में 6 लाख है, एक्सक्लूडिंग 2 लाख पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो 6 लाख में से 2 लाख का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, एक्चुअल आ जाएगा 4 लाख. ठीक, लिख देंगे. कैलकुलेट required the firm's goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profit of last 3 years. क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years मल्टीप्लाइड बाय 4 years. ये हो जाएगा दोस्तों 3,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 years. ₹4.5 लाख इंटू 4, 18 लाख रुपया. आया क्या सबका? सिंपल है, सिंपल है, काफी सिंपल है क्या गाइस? बताओ ना यार, बताते नहीं, कुछ नहीं. कोई तो बताओ यार. ये आईसीआई के इलस्ट्रेशन नहीं है, ये मेरे इलस्ट्रेशन है. दीज आर माई इलस्ट्रेशन. यस दोस्तों, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं मेरे, इसको ज्वाइन कर लेना. यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. आई एम गिविंग यू अ लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल नहीं बोलूंगा, ग्रुप है वो. तो दोस्तों यहां पर जाना, आपको पार्टनरशिप के नोट्स पिन किए हुए मिल जाएंगे. इंटायर पार्टनरशिप के नोट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप. आपने 2012 में 6 कैसे लिया? 4 लाख का प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट कब आया? 2 लाख रुपए का लॉस डिडक्ट करने के बाद. तो ये लॉस को मैंने ऐड बैक कर दिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 6 लाख.
आ जाओ दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड पर आ जाओ। सुपर प्रॉफिट मेथड पर आ जाओ। पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट। वो मेथड क्या कहता है? प्रॉफिट है, गुडविल है। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो ही गुडविल होगा। नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नो गुडविल। वेरी सिंपल, कॉन्सेंट्रेट गाइस। Goodwill under this method is ascertained by multiplying the of super profit by certain number of years purchase. पिछले मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ इयर्स परचेस से, यहाँ पे हम लोग सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे। While calculating past year profit, any abnormal gain is excluded by deducting it from past profits and any abnormal loss is excluded by adding it to the past profit. यहाँ पर भी दोस्तों सेम, ना एबनॉर्मल गेन कंसीडर होगा ना एबनॉर्मल लॉस कंसीडर होगा। ठीक, नेक्स्ट, गुडविल इज इक्वल टू एनुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक, एनुअल सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज माइनस नॉर्मल एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट। ठीक है ना, एनुअल सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है माइनस कितना प्रॉफिट नॉर्मली होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ है पिछले 5 साल का 1 लाख रुपया, जबकि होना चाहिए था केवल 80,000 रुपया। आपने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नथिंग बट सुपर प्रॉफिट। एनी प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट is known as super profit. I hope everyone got this. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? सेकेंड, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको कैपिटल दिया रहेगा, वो कैपिटल पे आपका रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट, if future maintainable profit is less than the normal expected profit, there is no super profit. कितना हुआ है? 1 लाख। कितना होना चाहिए था? 1,20,000। निगेटिव 20,000 आएगा, मतलब नो गुडविल। गुडविल तो तभी होगी भाई जब सुपर प्रॉफिट होगा। नो सुपर प्रॉफिट, नो गुडविल। वेरी वेरी सिंपल। ठीक, नेक्स्ट, आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे। रेडी फॉर द क्वेश्चन एवरीवन? रेडी फॉर द क्वेश्चन एवरीवन? A firm of ABC has a total capital investment of 4,50,000. The firm earned a net profit during the last 4 years as year 1, year 2, year 3, year 4. The reasonable expected return is 15%, having regard to the risk involved. Find out the value of goodwill of the business if it is based on 3 years purchase of the average super profit of the past 4 years. I want every one of you to read the question 3 times. 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। रीड द क्वेश्चन थ्राइस। 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ईच एंड एवरी वन। डन एवरीवन? चलो बढ़िया ना, कॉन्सेंट्रेट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कितना कमाया पिछले 4 साल में एवरेज? 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 4,50,000। ये टोटल कैपिटल है और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 15%। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोस्तों आपने कितना कमाया पिछले 4 साल में एवरेज? 92,500 आपने कमाया, जबकि आपने कितना कमाना चाहिए था? आपने कमाना चाहिए था 67,500। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट इज 25,000। ठीक, therefore value of goodwill is equal to value of goodwill is equal to 25,000 into 3 years is equal to 75,000. I hope everyone got this. I hope everyone got this. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? समझ में आया क्या दोस्तों भाइयों? चलो बहुत बढ़िया। अब कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फिर एन्युटी मेथड भी करेंगे। ठीक है, कल बहुत सा पार्ट हम लोग कर लेंगे दोस्तों। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। मिलेंगे कल सेम टाइम 11:30 AM। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय गाइस। हैव अ